یہ سائفر میں اپیل میں جو سماعت ہے وہ بڑی طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے، کیونکہ باس ہیں اور باس میرے خیال میں اب کنکلوڈ ہونی چاہیے۔ اگر اس طوالت کے ساتھ اپیلوں کی سنوائی ہوتی ہے تو پھر ہمارے جو آنے والے 2 اور اپیلیں ہیں وہ معاملات کو عید کے بعد لے جائیں گے، تو لہٰذا ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اب عدالت کو کہیں کہ جی اب جتنی باس ہوئی ہے اسی پہ اکتفا کر لیں اور فیصلہ دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا میں کچھ اینکر حضرات جو ہیں مسلسل یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں انتشار ہیں۔ آج عطا تارڑ نے بھی بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ گور صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں اور میرا ذکر کیا ہے کہ میں کوئی اور بات کرتا ہوں۔ ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں اور کوئی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ ہم جب جیل سے نکل آتے ہیں آپ موجود ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو کے ایک ہی بیانیہ دیتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، ایک مٹھی ہیں، اور کچھ ہمارے اپنے اندر کور کمیٹی میں ہم ایشوز پہ جب اختلاف رائے رکھتے ہیں تو وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اس اختلاف رائے کو جو ہے آپ لوگ پارٹی کے اندر اختلاف قرار دیتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے، کل ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے میرے حوالے سے کہا ہے کہ جی میں نے کور کمیٹی میں معافی مانگی اور میں نے فلاں سے معافی مانگی۔ یہ خبریں کون دیتا ہے اور کیوں اس طرح بغیر تصدیق کے وہ ایسے جہاں دیدہ ایسے کریڈیبل صحافی ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں؟ نہ میں نے کسی سے معافی مانگی ہے کور کمیٹی میں، نہ کسی اور سے معافی مانگی ہے، اور ان کو ایسے خبریں پھیلانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ باقی جو ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہماری رائے کے اظہار کو جو ہیں ہر ایشو پہ بعض اوقات تجاویز ہوتی ہے، بعض اوقات کمنٹس ہوتے ہیں، اور ان کمنٹس کو جو ہے پارٹی کا بیانیہ تصور نہ کیا جانا چاہیے۔ باقی تیسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کی چوری جو ہے تاحال جاری ہے۔ اب پھر جو ہیں 2 حلقوں میں سن رہے ہیں کہ جی ریکاؤنٹ کا آرڈر ہو گیا ہے، اور اسی ریکاؤنٹ کے بہانے یعنی حد ہی کر رہے ہیں، اتنا اندھا سمجھا ہے۔ ایک امیدوار 8,375 ووٹوں سے پاس ہوا ہے، حلف لیا ہے قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد جو ہیں اس کے تیلے تو اسی ریٹرننگ افسر کے پاس ہے جس نے فارم 47 بنائے ہیں۔ انہوں نے تیلے کھول کے ان کے متعدد پولنگ اسٹیشنوں پہ ڈبل مہر لگا دیے تاکہ اس کے ووٹ ریجیکٹ ہو جائے، اور بعد میں ریکاؤنٹ کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی 8,300 کی لیڈ ہو بھی گئی، 3,500 کی اور لیڈ جو ہے نون کے امیدوار کو دلا دیتے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کتنی جیل سازی سے یہ سیٹیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں قانون کی زبان میں؟ جیل سازی، فراڈ، چیٹنگ۔ اسی پہ یہ حکومت بنی ہے۔ جو حکومت دھوکہ دہی کے بنیاد پہ بنی ہو وہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گی۔ ان کا کام یہ ہے، اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرے۔ یہ دھوکہ دہی جو ہیں یہ ہاربنجر ہیں، نقیب ہیں قوم کے ساتھ بڑے دھوکے کی۔ انہوں نے بڑے ہاتھ مارنے ہیں، جس طرح انہوں نے 16 ماہ میں مارے، اور آئندہ جو چند مہینوں میں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ بہت بڑے فراڈ ہونے والے ہیں۔ پاکستان ایئر لائن کو یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں کہ جی خسارے میں جا رہا ہے۔ قوم کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ پی آئی اے کیوں خسارے میں جا رہا ہے؟ پی آئی اے کے فنڈز جو ہیں خرد برد ہوئے ہیں، پی آئی اے کے جہاز خریدے گئے ہیں۔ ایک جہاز بوئنگ $140 ملین پہ بوئنگ کمپنی بیچتی ہے۔ ہمارے پی آئی اے نے 7 جہاز خریدے $138 ملین پہ، ادائیگی گورنمنٹ نے کر دی۔ بعد میں جب انہوں نے کہا جی کہ کاؤنٹ ڈاؤن دیں، بریک اپ دیں کہ کس انجن کے کتنے ہیں، اندرون حصے کے کتنے ہیں، تو بریک اپ میں پتہ چلا کہ $40 ملین انہوں نے مینٹیننس قیمت میں رکھے ہیں۔ تو پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو انجینئرنگ کا اپنا شعبہ ہے تو ہمیں مینٹیننس کے پیسے واپس کرو۔ 280 ملین بوئنگ نے واپس کیے، وہ پیسے پاکستان میں ابھی تک نہیں آئے ہیں، کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں، آف شور اکاؤنٹ میں گئے ہیں۔ اب کہتے ہیں پی آئی اے کو بیچو، پرائیویٹائز کرو۔ بھائی وہ پیسے کون نکلوائے گا؟ اور یہ ایک نہیں، اس طرح کئی وارداتیں ہوئی ہیں۔ اب پرائیویٹائزیشن کے نام پہ اونے پونے داموں ان قومی اثاثوں کو بیچا جا رہا ہے۔
पाकिस्तानियों को एडवांस में आगाह कर रहे हैं। एक और बात, आखिरी बात जो आपके साथ, खान साहब की आज़ादी जो है वो मुसलसल रोड़े अटका रहे हैं। अब जबकि ये तीनों अपीलें राइप हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं और इनको नज़र आ रहा है कि ये सस्टेन करने वाली नहीं है ये ट्रायल, तो दूसरी तरफ अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस जो है उसको टॉप गियर लगा दिया जज साहब ने, और कल फिर उसमें समाअत है। यानी तमाम इस्लामाबाद की मातात अदलिया ने दीगर तमाम केसेस छोड़ के खान साहब के केसेस पे फोकस किया हुआ है। खान साहब को सज़ाएं दिलवानी है ताकि यहाँ से अगर खान बरी होता है तो एक और केस में उनको सज़ा हो जाए ताकि वो बदस्तूर जेल के अंदर रखा जा सके। और आखिरी बात ये है कि ये जो मैंडेट चोरी के लिए हमारा एहतजाज है 30 मार्च को, उसमें डीसी ने ये रीज़न दिया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है 23 मार्च को, तो 23 मार्च को इसे नहीं दी जा सकती। अब 30 मार्च को भी यही कहा है कि जी उनके पास आईबी के और स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट्स आए हैं। आईबी तो इनका बगल बच्चा है, आईबी तो कहीं ये कहीं दिन है तो दिन है, कहीं रात है तो रात है। ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जो हुकूमत की इशारों पे नाच रही है और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात यह है कि ख़तरा हमें है या ख़तरा हुकूमत को है। आपकी लड़ाई अफ़गानिस्तान के साथ है, आपकी लड़ाई जो है दहशतगर्दी के अगेंस्ट है, तो लिहाजा वो तख्ते मर्श की टारगेट जो है उन्होंने हमेशा दहशतगर्दी के वाक़यात में हुकूमत पे अटैक होते हैं। उनको 23 मार्च को ख़तरा नहीं था, इतना बड़ा इवेंट कर दिया, और हमें ख़तरा है। 72 हमने जलसे जुलूस किए, एक सिपाही तक की सिक्योरिटी नहीं दी, न सिंध में, न केपी में, न बलूचिस्तान में, न इस्लामाबाद में और न पंजाब में, सारे पुरअमन रहे। और अब कहते हैं कि पीटीआई के जलसे को थ्रेट है, तो लिहाजा हम तमाम थ्रेट के साथ अपने ही रिस्क पे अपना जलसा करना चाहते हैं। और ये जो बहाने कर रहे हैं, बुनियादी हक है हमारा आर्टिकल 16 के तहत एहतजाज का, आर्टिकल 17 के तहत हमारा हक है कि हमारी पार्टी की क़यादत में हम इसको लीड करें, और आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा बुनियादी हक है कि हम अपने एहतजाज में कानून के दायरे में रहती हुई अपने इज़हार आज़ादी राय करें। तो लिहाजा इन चीज़ों को पाकिस्तानी ये देख लें, इनका ये बेरूप कहते हैं जी हम मुफाहमत की बात करते हैं। ओ भाई आप हमसे तो सांसें छीन रहे हैं, आप हमें जीने नहीं दे रहे हैं, ऊपर से वो जिसकी शक्ल पे जो है अल्लाह ने लानत जो है बरसाई हुई है, राना सनाउल्लाह, वो खान की ज़िंदगी के हवाले से क्या लुग़वियात बक रहा है। PMLN को सोचना चाहिए ना, ये अपने गुंडे सड़क चाप गुंडे बिठाए हुए हैं या ये आपके लीडर है। ये ज़बान है कि खान की ज़िंदगी जब तक है, खान के वजूद से आपको ख़तरा है। इसके अमाल जो है वो इसकी कभी शक्ल पे कंधा है। आप देख लें इसकी शक्ल को, और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करोगे राना तो तुम्हें 10 से ज़रब देते हैं, इसी तरह जवाब मिलेगा। माशाल्लाह। के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है जिसके अंदर आपको बड़ी जोरों शोर से आप पे कई इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कहा गया है कि जनाब ये पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। खिलाफ इल्ज़ामात जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको दोनों हाथों से लानत देता हूँ। आगे चले। 50 से ज़्यादा हमारे 50 से ज़्यादा आपने कहा था टीवी पे बैठ के, ये मैंने नहीं कहा था, आपने आप मेरा बयान सुना ही नहीं है ना, मैं आपका सवाल समझिए। सुना है कि आपकी इत्तला के मुताबिक 50 से ज़्यादा लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। आपने कहा था कि वो लोग इस वक्त नहीं चाहते हैं कि जो काम आप लोग कर रहे हैं या पार्टी के अगेंस्ट है, वो आइडेंटिफाई हुए लोग या नहीं हुए। हजरत में आपने मेरा बयान नहीं सुना है, मेरा बयान है ना तो मुझे याद होगा, मैंने 40 का जिक्र किया था, आप उसको 50 पे ले गए, नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये कहा था कि हमें पार्लिमानी कमेटी में फैसलाबाद से कुछ दोस्तों ने हमें ब्रीफिंग दी कि वहाँ पे MPS को तोड़ा जा रहा है। इसी तरह कोर कमेटी में हमें पंजाब की तरफ से ब्रीफिंग मिली कि जी वहाँ पे MPS को तोड़ा जा रहा है। फिर पंजाब के अपोजिशन लीडर ने कहा कि 20 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको जो है अप्रोच किया गया है और उनको डराया जा रहा है कि रिकाउंट की बुनियाद पे आपसे सीटें ले लेंगे। लिहाजा इसलिए मैंने ये बयान दिया। देखिए हमारा फोकस होना चाहिए सेनेट, सर मैं अर्ज करूँ ना मादादर, पहले इसका जवाब तुम कल होने दे। हमारा फोकस होना चाहिए 9 सीटें हमारा टारगेट है KP में, और 2 सीटें जनरल में, एक टेक्नोक्रेट में। पंजाब में जो है ये हमारा टारगेट है और हमें इस पे फोकस करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बयानबाजी के चक्कर में ये हमारे MPAs को देखें, इसमें
इलेक्शन में कौन लोग आए हैं? बड़े ही ऐसे लोग आए हैं जो आज़ाद हैं, कोई पार्टी नहीं है, उनके कोई MPs नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन नताइज देख लें, मोहसिन नकवी जीतेगा, काकड़ जीतेगा, और ये जो तीसरा है वावड़ा, इनकी कोई पार्टी नहीं है, और ये कहाँ से जीतेंगे? KP में सरमाएदार आए हुए हैं, पंजाब में पैसे वाले लोग आए हुए हैं, लिहाजा ये पोटेंशियल टारगेट हमें करेंगे। तो हमें अपने वोटरों पे, अपने MPs हजरात के साथ कोऑर्डिनेशन को जो है वो मजबूत करना चाहिए, ताकि सेनेट में हम साबित कर सके कि खान घर से अंदर हैं, तंजीम ने, पार्टी ने बाकायदा डिलीवर कर दिया है, और कोई लालच या धमकी या दोस्त जो हैं वो MPs को मुतासर नहीं कर सकी है। राणा सनाउल्लाह साहब का एक और बयान है, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी और औरंगजेब जो कि वजीर खजाना, वजीर दाखिला है, ये हमारी हुकूमत की ज़मानत है कि वो मतलब अगर हमारी हुकूमत में है तो हमारी हुकूमत चलेगी। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ये किसने जमानत दी है? सर ये जिन्होंने उन्हें लगवाया है, जिन्होंने उन्हें लगवाया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जू बोल पड़ा, जू को दाद देनी चाहिए। देखें, अगर पाकिस्तान में आपकी दाखिला, खारजा और आपकी मईशत हुकूमत के हाथ में नहीं है, तो हुकूमत क्या है? फिर तो बेहतर है नवाज शरीफ साहब अब आजकल मरियम नवाज की मुशीर पंजाब में लगे हुए हैं, तो वो मुशीर पंजाब हैं, और शहबाज शरीफ के लिए तो फिर हम यही कह सकते हैं कि वो शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं है, शलवार शरीफ है। सर, इस तरफ कानून के दरवाजे PTI पे ऐसा लग रहा है कि तमाम बंद कर दिए गए। इस सूरत में PTI क्या करने जाएगी? एहतजाज करेगी? और ये लग ऐसा रहा है कि सिर्फ आप ही एक हैं जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, बाकी तरफ से आपको नजर नहीं आ रहा। बाकी नजर आने चाहिए ना। ये जो भी आप पहले मुझ पे सवाल कर रहे थे कि आपके खिलाफ जो है बड़ी मुहिम चल रही है, वो यही कमबख्त तो मुहिम चला रहे हैं। आ जाओ ना, मर्दान की दिखाने का मौका है, फील्ड में आ जाओ, मार खानी है, लाठियां हैं, दो से दंद लिए, मेरे साथ खड़े हो जाओ, बता दो कौन को कि शरफ अल गलत था, ये और भी इधर है। नारे तकबीर, इमरान खान शेर पाकिस्तान, शेर अफजल मरवत जिंदाबाद। सर, सद्दाम तरीन एक बलोचिस्तान के यंग अपने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन पे लड़े थे, और वो जब इस्लामाबाद सड़क पे जाते हैं कश्मीर हाईवे पे, तो उनके लोगों को मारा जाता है, पकड़ा जाता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो अकेले निकलते हैं लेकिन उनका साथ नहीं दिया जाता। सद्दाम तरीन जो है बलूचिस्तान से एक बहुत ही अच्छी आवाज़ हैं, नौजवान हैं, जीते हुए उम्मीदवार हैं, दांदी से हराया गया है, कौमी असम्बली की ये सीट हमारी छीनी गई है। सद्दाम तरीन पे पर्चा हुआ है किस चीज़ का कि आप कश्मीर हाईवे पे जा रहे हो। ऐसे